क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वंस एक्चुअली, जो हम लोगों ने जो ज़्यादा देखी है, दाग ऑफ कोर्स, उसके बारे में फिर से मैं बात करूँगा. द अनकन्वेंशनैलिटी ऑफ योर सब्जेक्ट्स. You're a simple man, but you choose very, very unsimple topics to make. तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं पर दाल में कुछ काला है. We have to find out. But quickly moving on, आपने 2 फिल्में साथ में की उस ज़माने में, 2 बिल्कुल अलग किस्म की फिल्में जो आज तक क्लासिक हैं, तब क्लासिक थी, ज़िंदगी भर क्लासिक्स ही रहेंगी. And completely chalk and cheese kind of films. Yes जी made 2 films near simultaneously. उस ज़माने में पहले तो इतनी बड़ी फिल्म बनाना और फिर 2 वैसी एक साथ बनाना बहुत ही बड़ी बात थी. यस जी मेड दीवार एंड कभी कभी टुगेदर एंड विद द ग्रेट मिस्टर अमिताभ बच्चन, जो एक में पोएट थे और एक में थोड़े से एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर था. एंड बोथ ऑफ देम क्लासिक फिल्म्स, बोथ ऑफ देम. तो कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि पोएम की जगह वो कहते थे मेरे पास माँ है और राखी जी को कहते थे कभी कभी मुझे मेरी माँ याद आती है. There was 2 reasons. When Diwar script came to me, this full bound script, I heard the narration of Diwar from Javed. I think till today, Diwar is the most finest script written by Salim Javed. Most finest script. There's no flaw in the whole. There are a lot of other castings came into people's mind, but we thought Amitabh and Shashi Kapoor are the best for that. Because the producers were 2 different producers. One was produced by Gulshan Rai, the Kabhi Kabhi was produced by me. So some facility comes to you, he will look after the production of that picture, I look after my picture. Secondly, these 2 people are the most punctual people I've ever worked with. Don't look at me like that. There's no special issue. Amitabh Bachchan and Shashi Kapoor, the most punctual. I could depend on them. Whenever I want, they are there. But in these 2 films, I, being an honest man, an honest filmmaker, I gave the option of releasing first Diwar in 75. I should be. He should be given preference. He's putting money for both the films, of course. But when you talk of Kabhi Kabhi, I think it's the most enjoyable film I've ever made in my life. I picturized in all the 3 seasons of Kashmir, autumn, summer, and snow. It was, somebody used to say when it was not shooting going on. It was honeymoon camp. It was picnic. Rakhi was just married, Vaidharma was married. गलत समझेंगे उसको. यदि कि those things आज नहीं होंगे कभी. Jaya was my assistant, proper assistant in Kashmir. Amitabh's parents, they were actors in my film as कन्यादान करते थे राखी के parents. कुछ पार्टी के सीन थे, अमिताभ को भाई और भाभी है वहाँ पे. शूटिंग हो रही तो किसी के कुछ ज्वेलरी आ रही, किसी की राखी को घाघरा किसी का आ रहा है, किसी कुछ आ रहा है. ऐसा लगता है हम फिल्म नहीं बना रहे, बैठने बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं. हम कभी शूटिंग करने चले गए पहलगाम में, शूटिंग चिंटू नीतू की. ये कहते हैं हम भी साथ चलेंगे भाई, तुम लोग शूटिंग करो, हम ऐश करेंगे, खाएंगे, मरेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे. आज तक आई थिंक कभी कभी से ज़्यादा एंजॉयमेंट कभी नहीं हुआ. बिकॉज आई टोल्ड यू इट वाज वंडरफुल फिल्म मेकिंग दैट टाइम. उसकी स्टोरी मेरी वाइफ पैम ने लिखी थी. उसने कहाँ से ली मुझे पता नहीं, बट स्टोरी उसकी थी. शी गॉट द क्रेडिट फॉर इट. तो एज यू से मेंटली इट वाज नॉट स्ट्रेन, इट वाज चैलेंज. 2 अलग फिल्म्स साइमल्टेनियसली शूटिंग, इट वाज चैलेंज कि आई शुड बी मेंटली स्टेबल, make films, I should be honest about them. Yeah, by the grace of God, both did very well. And yes, he's done that more often than once actually. He went on to do even Trishul and Kala Patthar. And Kala Patthar भी उसके बाद आपने same years में तकरीबन बनाया. Simultaneous shooting. And completely. वो भी एक गुलशन जी की मेरी थी. Yeah, so it's amazing the amount of work he's been able to put in with such big films. आज हम एक बनाते बनाते 3 बिंगे हो जाते हैं. और मेरी दूसरी कहानी जो आपसे जुड़ी हुई है,
80s की बात बता रहा हूँ मैं, तब शायद 14 या 15 साल का था मैं। और मैं एक शूटिंग हो रही थी आपकी फ़िल्म की सिलसिला, तो मैं वो शूटिंग देखने के लिए अपने घर वालों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। और मेरी कहानी ये है कि मुझे आज तक ये नहीं मालूम था कि मेरी बीवी के, होने वाली बीवी के जो घर वाले हैं वो भी वहाँ पर थे। अच्छा। तो जैसा आपकी फिल्मों में होता है ना, ऐसा गाना वाना चल रहा है, हाथों में 9-9 चूड़ियाँ और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं। तो उस मैंने उम्र में देखा नहीं था गौरी को या उनको, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हमारी सारी फैमिलीज़ वहीं पर थीं उस शूटिंग में। और उनकी जो मदर हैं वो बार बार मुझे बताती हैं कि वो खड़ी हुई थी एक कोने में और आपने ला के उनको कुर्सी पर ऑफ़र भी की। तो मेरा सिलसिला जो है आपके साथ चिपकने का काफ़ी मतलब चलता ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। एंड एक बात मैं पैमांटी आपको बता दूं, इस बातों में आपने नोट किया है कि जितनी भी हीरोइंस हैं वो यश जी को बहुत चीज़ें ऑफर करती हैं। राखी जी ने पैसे भी ऑफर कर दिए, पोएट्री भी हो रही है। सो आज यू जस्ट कीप, ये मैंने इसलिए ही किया ये प्रोग्राम, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाए। ओके, एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग सिलसिला, वी मूव ऑन टू 1981। एम आई राइट? दैट्स द ईयर। Yeah, 81. और 1981 सिलसिला, जो अगेन वेरी बोल्ड सब्जेक्ट, वेरी डिफरेंट, बट आज तक लोग ये समझना चाहते हैं, और विद ऑल अमाउंट ऑफ डिग्निटी एंड गुडनेस एंड ऑनेस्टी, दैट परहैप्स इट वाज one of the most interesting, one of the biggest, one of the most challenging casts in a film ever done in the history of Indian cinema. So वो कैसे हुई? यही ओरिजिनल कास्ट थी या पहले कुछ और था फिर आपने बदला? But Silsila 1981, the only thing I'll talk to you about is the casting of that film. This was not original casting. This original casting was in my mind. I wanted this casting. You wanted the casting, I wanted, लेकिन ये थी नहीं। but I knew it won't happen. Original casting जब अपनी फाइनल की थी, शायद परवीन बाबी और स्मिता पाटिल थे। Okay. And who was playing who? Smita ji was playing? Jaya, Parveen Babi was playing Rekha. Before going for a shooting, I had gone to Kashmir. Bachchan Saab was shooting for a film, Kalia. And we were shooting another film, not directed by me, Sawal, Sanjeev Ji, so the other director and all that. After dinner, Bachchan Saab used to work, Amitabh. He used to have full script with him. And he studies. He goes each and every comma, full stop. After everybody gone out of the room, he comes to me. Are you sure with the casting of the film? You're happy? I'm not happy. You tell me honestly, कि आपको लगता है कौन की आइडियल कास्टिंग क्या है इस सिलसिला? मैं कि बताने का फायदा कुछ है क्या? अब तो शूटिंग करने आए भाई हम लोग। कहते फिर भी बताओ मुझे, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, बहुत कमाल स्क्रिप्ट है, फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में पिक्चर बन रही है यार। मैं कहता हूँ सच पूछो तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, ये कास्टिंग है। अब बोलो तुम। अमिताभ बच्चन साहब बात करते, कुछ दिल सोचती है तो बहुत एक लंबा चौड़ा पॉज आता है। ऐसा करते हैं, कल बॉम्बे चलते हैं और फिर दोनों से बात करते हैं। आप जया से बात कीजिए, रेखा से बात कीजिए, अगर हो जाए फर्स्ट क्लास। ये बड़ी मुश्किल बात है, बट मैं प्रोड्यूसर हूँ तो करना ही पड़ेगा। हम दोनों आए फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, हम दोनों साथ बैठे हुए थे। हमने शायद एक वर्ड भी एक्सचेंज नहीं किया, ऐसे दिखते थे। क्या होगा, ऐसे हाथ करते क्या होगा। हम नेक्स्ट डे पहुंचे, मैं जिया के पास गया, रेखा से बात की। आप वो श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो ठीक है। मैं कहा जय एक बात यह है कि ठीक तो है, पर कल शायद हम शूटिंग पे जा रहे हैं कश्मीर। क्या? हाँ। तुम ओके बोलती हो, कल जा रहे हैं, बहन के साथ तुम जाओ, कुछ साड़ियाँ खरीद लो और मैं टेलर को साथ ले जाता हूँ, वहाँ पेटीकोट ब्लाउज बनाएंगे, शूटिंग करते रहेंगे। जय जी कुछ अब ज़्यादा नहीं बोल। कहती ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चन जी बड़ा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बड़ा। मैं तो रिएक्शन आर्टिस्ट बोले कर मैं चली जाती हूँ।
और रेखा को बोला तुम अपने कुछ ड्रेसेस आप नीचे बना के तुम 3-4 दिन बाद आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। और ये कास्टिंग हो गई। लेकिन बिफोर आई स्टार्टेड द फिल्म मैंने दोनों को अलग अलग इकट्ठा मिलना तो मुश्किल ही था, और ऑब्वियस रीजन कि यार देखो तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी पिक्चर में काम कर रहे हो दोस्ती में, तो अब दोनों को रोल पसंद है। मैं तो बेईमानी नहीं करूंगा ना किसी के साथ। रोल तुम्हारे पास, स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है, यार मेरे सेट पे कोई गड़बड़ी मत करना यार। दोनों ने मुझे श्योरली लाइक बिल्कुल प्रॉपर, वी विल डू द बेस्ट, डोंट वरी, एंड दे डिडंट गिव मी ट्रबल। आई मेड द पिक्चर इन परफेक्ट हार्मनी। तो क्या होता है कि मेरा ख्याल है कि सबक की बात नहीं है। When you're honest to stars and making film, genuinely honest, not just saying a word honest, this is script, I'm making this film, तो गड़बड़ी होने के चांसेस कम होते हैं। जब you play games, then others play games with you. Absolutely. Just ऐसे एक सवाल नहीं था, मैं I'm sorry this is completely out of turn, but I would like to know स्मिता जी और परवीन भाभी जी को क्या बोला आप लोगों ने? ये सबसे ये कश्मीर में ही बैठे हुए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब बुलाएंगे बुलाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। परवीन भाभी was shooting in Kashmir. Ramesh Sharma, who was younger brother of Uday Sharma, he was my assistant in सिलसिला। मैंने जब ये दोनों हो गया तो मैंने उसको फ़ोन किया, देखो ऐसा करो तुम परवीन को समझा देना यार, मैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, माफ़ी मांग लेना मेरे से। उसने समझा दिया होगा। लेकिन जब मैं बॉम्बे से वापस श्रीनगर पहुंचा हूँ, देखिए किस्मत की खूबी, देखिए मैं उतरा हूँ और प्रवीण जा रही थी बॉम्बे। छोटा सा एयरपोर्ट, ये तो नहीं अराइवल लॉन्च लगा, डिपार्चर लॉन्च। वो भागी होगी मेरे पास आई, यश यू डूइंग व्हाट इज गुड फॉर द फिल्म, don't be afraid of me. Only one condition, you owe me a film. You owe me a film. But तुम वो काम कर रहे जो अच्छा फिल्म के लिए, तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। I think you are doing what's best for the film. ये तो प्रेम अभी संभल गई, and she had left a letter with Ramesh, we call Billu, to give it to me. Because मैं पॉजिटिव बातें सबसे कर सकता हूँ, नेगेटिव बातें मैं बहुत घबराता हूँ। एक मैं जिंदगी में इसको ना नहीं कर सकता हूँ, और हम भी मुश्किल हो जाती है। कि मैं जब आया था बॉम्बे तो मेरा बहुत दोस्त है शशि कपूर, मैंने शशि यार काम करेगा, कहना क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, ही वॉज वर्किंग सिलसिला। मैं कह यार मैं स्मिता पाटिल को नहीं ले रहा हूँ। तो ना लो, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा यार देख तू मेरा दोस्त है, मैं जा रहा हूँ कल सुबह, तेरी ड्यूटी ये है कि तू स्मिता पाटिल को मिलो, उसको समझाओ मेरी प्रॉब्लम, और उसको बोलो काम नहीं कर रहे। कहता ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं कह देखो जब तक तुम नहीं समझाओगे मैं शूटिंग नहीं कर सकता। उसके कपड़े बन चुके हैं, एंड शी इज नो गिवन नो चांस ऑफ कंप्लेंट। नहीं कि मैंने अच्छी है बुरी है पैसों की चीज़ नहीं, बट शी इज नॉट देयर इन फिल्म, प्लीज डू इट फॉर मी। मुश्किल काम है और मैं तूने बोला मैं करूँगा। उसने मैसेज तो दे दिया, पर उसका क्या रिएक्शन है वो तो मुझे बताया उसने। मैं जब पहले शेड्यूल करके आया था, मैं राजकमल स्टूडियो में शूटिंग ऑफिस था यहाँ, और किसी और फिल्म की शूटिंग चल रही थी स्मिता पाटिल की। उसको पता लगा मैं ऊपर बैठा हूँ, वो मेरे पास आई, ये जी आपने किया तो वो जो आपको ठीक लगा। उसमें एक ही गलत बात थी, आप मुझे खुद बोल देते थे मुझे बुरा ना लगता, शशि बोला तो मुझे बुरा लगा। मुझे लगा मैं कि यू आर राइट, पर कभी कभी आदमी ऐसी एम्बेरसिंग सिचुएशन में हो जाता है कि साफ खुल के बात नहीं कर सकता। आई वॉज वेरी एम्बेरस्ड फॉर यू, आई थिंक आई डिड ए रॉन्ग थिंग, बट आई डिड थिंग विच आई डिड फॉर द गुड ऑफ द फिल्म। तो दोनों को ऐसे मैंने बता दिया आपने, all's well that ends well करके दोस्ती कर लिया आपने। And I'll one bit that I really want to know from this phase of your career,
is working with one of the greatest actors of all times, Dilip साहब. मशाल फिल्म में आपने उनके साथ काम किया. And how was that experience? उनके बारे में कुछ और आपकी you even talked about नया दौर के वक्त आपको वो गाड़ी में लेकर गए थे. वो धर्मपुत्र में ले गए थे. धर्मपुत्र के वक्त आपको लेकर गए थे. First film which I came in contact with Dilip sir was Naya Daur. I was assistant there that time. And I don't know, because it's a strange thing, Dilip का working system, if I explain you. जब हम उसको अप्रोच किया, पिक्चर थी मैन वर्सेस मशीन. He says, I like this story, but I can't work with you. I do only 2 films at a time. I'm doing 2 films. Matter stops. हम ढूंढते रहेगा और एक्टर कौन आएगा, ये आएगा सब. तो 2-3 महीने बाद उनका खुद फोन, ईमानदारी देखिए आर्टिस्ट की, कि आप मेरे पास नया दौर की सब्जेक्ट लेके आए थे. मेरे पास उस वक्त 2 पिक्चरें थी. अभी अनफॉर्चुनेटली एक पिक्चर के डायरेक्टर की डेथ हो गई है, वो पिक्चर नहीं बन रही. अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं तो आ जाइए. वी कॉल्ड हिम. स्टोरी सेशन हुआ. एट दैट टाइम दिलीप कुमार वाज दी दिलीप कुमार. वो आज भी दी दिलीप कुमार ही हैं. तो उस वक्त अगर दिलीप कुमार स्टोरी सुनना पसंद कर ले तो बड़ी बात थी. हमारे घर में जो हमारा फ्लैट था जू पे, तो आए कामिल रशीद साहब डायलॉग राइटर थे, स्टोरी राइटर थे, अख्तर मिर्ज़ा. उसने सारी स्टोरी सुनी. बोले मैं पिक्चर कर रहा हूँ. आगे तो क्वेश्चन नहीं ना कोई. बाकी जब वो पिक्चर ऐसे कर रहा, ऐसे करते हैं. एक मेरी छोटी सी कॉटेज है जू पे, कल से वहाँ बैठते हैं. 1 महीना रख लेते हैं. अरे 1 महीना नहीं, हम हर सीन बाय सीन काम करेंगे और मैं हर सीन इनेक्ट करूँगा. आप बोलिए ये गलत सुर है, ये अच्छा सुर है, ठीक सुर है. खाना वाना वहीं खाएंगे. सुबह से आइए 11 बजे, शाम तक काम करेंगे. He did that. And his inputs in the picture was all for the benefit of the Ajit actor Ajit. He wasn't talking about himself, he was talking about the other actor. तो आई आस्क्ड हिम, दिलीप साहब तो सजेशन सारी अजीत की दे रहे हैं. इसे यार अगर वो विलेन स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं क्या कर लग रहा हूँ. जब डेट्स की बात आई कि देखो मेरे पास पिक्चरें होती नहीं बहुत. 1 महीना आपका, 1 महीना किसी और का काम करते रहो. अरे भाई हमको 1 महीना नहीं चाहिए. आई डोंट गो. आप शूटिंग करो, लुक आफ्टर करो, मरी करो, पिक्चर देखे, घूमो फिरें, ये करो. 1 महीना आपका, 1 महीना शूट. पिक्चर तो ऐसे बनाऊंगा मैं. 10 दिन शूटिंग करें और बाकी दिन आपके साथ घूमते बाकी जो मर्जी करो. मुझे पुणे ले जाओ, मुझे पिक्चर दिखा दो, मुझे खाने पे ले जाओ, मुझे कहीं ले जाओ. और मेरी कोई डेट ही नहीं होती. मैंने दोनों आपस में जाना करना है. कभी वो वर्किंग था, वो जब डबिंग भी करते थे, वो कहते जी डबिंग हो रही है, पर ऐसा करो यार तुम पहले मेन्यू फिक्स कर लो यार, खाना क्या खाना यार.